Hmm. Assalamu alaikum students. I welcome you all here with our next topic of discourse studies. I hope you all would be knowing about discourse, its introduction, its definition in clear terms, in clear meaning. So we are going to talk about our next topic, and our next topic is text and discourse. So we are going to see and study in this lecture, in this topic, that what is actually text and what is discourse, and what is the difference between text and discourse. Okay, students, while talking about the meaning or the difference between text and discourse, there has been some confusion in literature regarding the distinction between discourse analysis and text analysis, because it's quite natural that when a confusion exists, जब कोई confusion होती है तो उससे related फिर उसका solution भी निकाला जाता है. So we are going to see what is actually the difference between discourse analysis and text analysis. So this is the main objective of our this topic, that we are going to see the result of this confusion in terms of discourse and text. हम इस टॉपिक में इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम और इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन डिस्कोर्स एंड टेक्स्ट, राइट? सो yes, some researchers label their analysis discourse analysis, while others claim they are doing text analysis, but the difference is often inconsistent. We are going to see what is that difference. Some claim to make clear distinctions between discourse and text, but a closer look reveals that their distinctions do not hold. तो यहाँ पे आपने इसको जनरल लेना है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द कंफ्यूजन विच इज़ एग्जिस्टिंग, और वो कंफ्यूजन यही है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन text analysis and discourse analysis. So yes, here we are going to see the difference between text and discourse. अच्छा जी, मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि टेक्स्ट जो है वो रिटन होता है और डिस्कोर्स जो है इट इज स्पोकन, राइट? अब हम इसी रिटन और स्पोकन की बेसिस पे हम डिफरेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स. सो टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस, यू नो वेरी वेल कि जब कोई टेक्स्ट रिटन फॉर्म में होता है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं. So written form of something is always made up of sentences. It's clear, right? So पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर then we come to discourse. A text is made up of sentences having the property of grammatical cohesion. You know very well कि टेक्स्ट हमेशा sentences की बेसिस पे बना होता है, और sentences हमेशा किसकी बेस पे एग्जिस्ट करते हैं? ग्रामर की बेस पे, और ग्रामेटिकल टर्म्स उसमें यूज होती हैं, और वही ग्रामेटिकल टर्म्स उसमें रिलेशनशिप डेवलप करके उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में ले आता है, राइट? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब भी आप एक रिटन फॉर्म ऑफ समथिंग, रिटन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जब देखते हैं तो हमेशा वो किस चीज़ का मजमूआ है, वो किस चीज़ का एग्जिस्टेंस है, इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल कोहेजन. यानी वो सारे ग्रामर बेस्ड वर्ड्स, ग्रामर बेस्ड रूल्स, वो एक टेक्स्ट को कोहेजन, यहाँ पे इट मीन्स कि वो उसको एक लिंक बना के एक प्रॉपर शेप में लेकर आ जाते हैं, राइट? सो text analysis deals with cohesion. Cohesion means कि all the words, all the strategies, all the methods, all the grammatical words which are used in the text, उसको देखा जाता है कि किस तरह वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलके एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, कोहेजन. क्योंकि जब आप टेक्स्ट को रीड करते हैं, वेन एवर यू रीड अ रिटन टेक्स्ट, मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रही हूँ दैट टेक्स्ट इज ऑलवेज रिटन. तो आप जब भी रिटन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो रिलेशनशिप्स डेवलप करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं. और रिलेशनशिप्स कहाँ से आते हैं?
ये लिंक कहाँ से आता है? विद द ग्रामेटिकल यूज ऑफ ऑल द वर्ड्स, sentences, right? Now look at this discourse is the use of such sentences. अब इन्हीं sentences को spoken form में use करना, that is actually discourse. A discourse is made up of utterances. Yes, ये utterance जो है ये डिस्कोर्स को बड़ा क्लियर कर देते हैं। अटरेंस किसे कहते हैं? अल्फाज की अदायगी। जाहिर है अदायगी आप कब करते हैं? व्हेन यू अटर, व्हेन यू स्पीक, राइट? हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेरेंस, यस। अब रिलेशनशिप बोलते हुए भी डेवलप होता है, ठीक है? यहाँ लिखते हुए ग्रामेटिकल कोहेजन है, यहाँ बोलते हुए भी रिलेशनशिप डेवलप होता है ताकि मीनिंग कैन बी क्लियर टू द लिसनर, ताकि लिसनर को उसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट प्रॉपर सीक्वेंस अरेंजमेंट के बगैर यू कांट give and convey your clear meaning, right? Discourse analysis investigates coherence. अब इसमें हम क्या करते हैं? जो स्पोकन में हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इन इंट्रोडक्शन कि डिस्कोर्स एनालिसिस में या टेक्स्ट एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है, इसमें रिटन को एनालाइज किया जाता है, इसमें स्पोकन को एनालाइज किया जाता है, राइट? अब डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या चीज इन्वेस्टिगेट की जाती है? कोहेरेंस, रिलेशनशिप। with the help of relationship meanings are actually understood, right? मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की जाती है, मीनिंग्स को क्लियर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एनालिसिस किया ही इसीलिए जाता है सो दैट द मीनिंग्स कुड बी क्लियर्ड। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि बियॉन्ड द लैंग्वेज, बैकग्राउंड में लैंग्वेज के क्या क्या चीज़ें हैं वो हम किस की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस, जो कि स्पोकन में अलग तरीके से किया जाता है और रिटन में अलग। तो दोनों में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है कि जिस की मदद से हम लिंक करके रिलेशनशिप डेवलप करके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, now it contradicts the known and well established distinction between sentence and utterance in the literature. यही distinction है sentence in written form and utterance in spoken. ये distinction है between, this is a distinction, difference between text and discourse. Clear? Okay, so Widdowson, in 1978, he argued that discourse is made of sentences having the properties of cohesion and coherence. Yes, definitely. आपका discourse जो है वो sentences होते हैं, उसमें कौन से sentences जिनको आप utter करते हैं, बोलते हैं with the help of what? कोहेजन एंड कोहेरेंस, यानी जो लिंक डेवलप किया जाता है, जो अरेंजमेंट डेवलप की जाती है so that the meaning could be understood. This is actually done in discourse analysis, right? Another distinction, what is other distinction which I told you very clearly at the start, text is defined in terms of its being a physical product. Yes, you know very well. Book आपके पास है, that is having a physical entity. Novel है, physical entity. Any kind of other article, magazine, newspaper, ये सब क्या है? That is actually report है, that is having a physical entity, physical product है, right? और discourse is viewed as a process, और discourse product नहीं है, यानी किताब जो पढ़ी है वो टेक्स्ट है, लिखी हुई फॉर्म में वो टेक्स्ट है, लेकिन उससे जो मीनिंग अंडरस्टैंड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पोकन, बोलते हुए, रीडिंग करते हुए, जो भी है वो एक प्रोसेस है। क्योंकि प्रोसेस क्यों है? प्रोसेस में क्या करते हैं? व्हेन वी रीड समथिंग, व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट, व्हाट इज डन इन दैट प्रोसेस? उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रोसेस, ठीक है? सो डिस्कोर्स इज अ प्रोसेस। when a text is taken, एक written text को लिया जाता है और फिर उसको बोला जाता है, तो बोलते हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश की जाती है। तो डिस्कोर्स इज अ प्रोसेस वेयर एज टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट, राइट? मीनिंग इज नॉट फाउंड इन टेक्स्ट, जी,
Meaning is derived through the reader's interaction with the text. Yes, आप पढ़ रहे हैं कुछ when you are reading something, ठीक है, सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वहां से मतलब नहीं आएगा पढ़ते हुए. मीनिंग इज डिराइव्ड while रीडिंग. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, आप उससे मायने निकालते हैं थ्रू द रीडर्स इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट. वो डिस्कोर्स. Are you getting my point? There is a book in front of me. There is a text in front of me. That text is a physical product. ठीक है, मैं उसको वैसे ही पढ़ रही हूँ. सिंपल, आई एम रीडिंग दोज वर्ड्स एंड टेंसेस, राइट. मैं प्रोसेस अगर अडॉप्ट नहीं कर रही, मैं उसको इंटरेक्ट अगर नहीं कर रही, उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही, तो वो सिर्फ एक टेक्स्ट है विदाउट एनी मीनिंग. लेकिन मतलब आप कब अंडरस्टैंड करते हैं? व्हेन अ मीनिंग इज अंडरस्टूड, व्हेन अ मीनिंग इज टेकन आउट, व्हेन अ मीनिंग इज डिराइव्ड, व्हेन द रीडर इंटरैक्ट विद द टेक्स्ट. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्कोर्स. आपका टेक्स्ट से इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज डिस्कोर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रही है? अ टॉय एग्जांपल आई वांट टू गिव यू हियर. खिलौना क्या है? अ टॉय इज व्हाट? इट इज अ टेक्स्ट. उस टॉय के साथ आप कैसे खेल रहे हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्कोर्स. क्लियर? तो yes, yes, another important thing which I already told you about text and discourse. Text is what it is written and discourse is what it is spoken, right? Text analysis investigates written form, discourse analysis analyzes spoken form. Text में क्या होता है? Written है. If there is an existence of something in written form, that is actually called as text. Text analysis में आप किसको analyze करते हैं? Text को analyze करते हैं, right? आप written form को analyze करते हैं कि ये word ऐसे है, इसमें phrases हैं, clauses हैं, इसमें sentences हैं. अच्छा जी, paragraph की formation क्या है? This is actually text analysis. डिस्कोर्स में आप क्या करते हैं? स्पोकन को एनालाइज करते हैं. डिस्कोर्स एनालिसिस एनालाइजेस स्पोकन फॉर्म. मतलब जो आप वट एवर यू आर स्पीकिंग और वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, व्हेन इट इज एनालाइज, व्हेन इट इज अंडरस्टूड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज discourse analysis, right? So this was all about. I just wanted to tell you in very easy term. मैं चाहती थी आपको easy way में basics समझ आ जाए. That is the most important thing. So I hope that when you will try to understand the difference between discourse and text in very basic terms, you would be answerable to such question. आप इस question के बारे में आप understand कर पाएंगे after understanding all the main points which I tried to make easy for you. तो आपने सिर्फ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इसके इन बेसिक थिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट and discourse, and what is done in text analysis and what is done in discourse analysis. So this was all about our today's lecture. I hope you would be clear about this thing. Inshallah, see you again with the next topic. Till then, take care of yourselves. Allah.